Welcome everybody. We are discussing the chapter Is Matter Around Us Pure? Chapter 2 of class 9. In our previous session, we have already discussed up to compounds. So let me tell you once again. Matter is of two types, pure substance and mixture. Pure substance is of two types, elements and compounds. In our previous two sessions, we have already discussed about the elements, their characteristics and some examples we have discussed, and compounds also we have already discussed, and how the compounds cannot be separated by physical process, that also we discussed. Now in this session we'll discuss about the mixture or the impure matter. So let us start the discussion. What is impure matter? Impure matters are also called mixtures. A mixture is a material which contains two or more different kinds of particles, atoms or molecules, which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion. तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड में हमने आपको बताया था कि कंपाउंड में भी two or more kinds of particles are there, but they are present in a fixed proportion. Okay, and they are mixed in such a way that they cannot be separated physically. लेकिन मिक्सचर में क्या है आपका? मिक्सचर में भी आपका दो या ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, केमिकली रिएक्ट नहीं करते, दे आर सिंपली फिजिकली मिक्स हुए होते हैं और उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं रहता. Now what are the properties of a mixture? A mixture may be homogeneous or heterogeneous. ये क्या है हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे बाद में. The composition of a mixture is variable. A mixture does not have a definite melting point or boiling point. In my previous session, I have already told you that the compounds are having a fixed melting point or boiling point. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था वाटर का. वाटर इज ए कंपाउंड, किसको लेकर बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लेकर बना हुआ है. दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन और उनका वाटर का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन मिक्सचर में फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता. फोर्थ पॉइंट इज एनर्जी इज नाइदर absorbed nor evolved during the formation of a mixture. देखो आपको मैंने बताया था कि कंपाउंड जब बनता है ये केमिकली बनता है, इसीलिए उसमें एनर्जी वो हीट के रूप में या किसी और फॉर्म में, जनरली हीट ही होता है, हीट के फॉर्म में आइदर ऑब्जर्व होता है या फिर इवॉल्व होता है. लेकिन मिक्सचर फॉर्मेशन के टाइम ना कोई हीट या एनर्जी इवॉल्व होता है ना एब्जॉर्ब होता है. Now, properties of mixture are the properties of its constituents. मैंने आपको कंपाउंड में एक एग्जांपल दिखाया था, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर का हमने कंपाउंड बनाया था. तो कंपाउंड बनने के बाद उसमें आयरन का और सल्फर का इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं होता, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, आयरन और सल्फर को हम अगर मिक्स करेंगे, फिजिकली मिक्स करेंगे, तो उसमें आयरन का प्रॉपर्टी आयरन दिखाएगा, सल्फर का प्रॉपर्टी सल्फर दिखाएगा. तो उसका कंस्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टीज आर शोन बाय द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स. The constituents of mixture can be separated by simple physical method. Physical method में मैंने जैसे बताया था evaporation, filtration, distillation, ये सब आपका physical method है. ये physical method से हम एक मिक्सचर में जितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको अलग कर सकते हैं. Now some examples of mixture we'll discuss.
इफ वी मिक्स आयरन एंड सल्फर, अगेन जैसे कंपाउंड में मैंने दिया था एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल आई एम रिपीटिंग हियर, बट हियर वी आर प्रिपेयरिंग द मिक्सचर एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। कंपाउंड में हम क्या किए थे, कंपाउंड बनाए थे बाय केमिकल रिएक्शन, बाय हीटिंग, लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल प्रोसेस से सिंपली मिक्सचर बनाएंगे। तो if we mix iron and sulfur in a watch glass, we obtain a mixture. Now, if we bring a magnet near it, it attracts the iron filings, which is the property of its constituent, that is iron. Whereas, if we dissolve it in carbon disulfide, then sulfur gets dissolved, leaving the iron filings unchanged, thus showing the property of its constituent. तो अभी आप देखो, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए हमने लिया आयरन फिलिंग्स, ये हो गया आयरन फिलिंग्स, और एक वॉच ग्लास में हमने लिया सल्फर पाउडर। अभी ये दोनों को हमने मिक्स कर दिया, सिर्फ फिजिकली मिक्स किया, हमने हीट नहीं किया। हीट करने से क्या होता है, ये केमिकल चेंज हो जाता, केमिकल प्रोसेस हो जाता। तो ये फिजिकल प्रोसेस से हमने मिक्स किया, तो अभी ये बन गया एक मिक्सचर। हम अभी जानना चाहेंगे कि जैसे मिक्सचर का हमने एक प्रॉपर्टी बताया कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी आर शोन बाय द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अभी हमने जो मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट, दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक है आयरन फिलिंग्स और एक है सल्फर पाउडर। ओके, तो अभी जब हम पहले क्या करेंगे, मैग्नेट को हम उस मिक्सचर में डीप करेंगे। तो डीप करने से क्या होगा, द आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, मैग्नेट के साथ लग जाएंगे और दे विल लीव द पाउडर, पाउडर अलग हो जाएगा, आयरन फिलिंग अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आयरन फिलिंग मैग्नेट में लग गया है और सल्फर पाउडर अलग हो गया है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मैग्नेट से आयरन को सेपरेट करना फिजिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल प्रोसेस से हम दोनों को सेपरेट कर दिए। और दूसरी चीज, हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर बनाने के बाद भी आयरन अपना खुद का प्रॉपर्टी दिखाता है, इसीलिए वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर सल्फर पाउडर से सेपरेट हो जाता है। ठीक उसी तरह हम सल्फर का भी टेस्ट करके देखेंगे। अब देखिए सेकेंड केस में हमने क्या किया, ये मिक्सचर है जैसे हमने पहले लिया था, दिस इज द मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स। अभी हमने कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में आपका सल्फर डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए हम कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे और उसमें हम सल्फर को डिजोल्व कर देंगे। तो आप देखिए सारा सल्फर डिजोल्व हो गया है और नीचे आपका जम गया है आयरन फिलिंग। तो ऊपर से हम सल्फर जो डिजोल्व हुआ है हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है, सेपरेशन, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फर अपना प्रॉपर्टी दिखा रहा है क्योंकि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो रहा है। अगर ये कंपाउंड फॉर्म में रहता तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये डिसॉल्व नहीं होता। हमें क्लियर? अभी हम जब कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट सब पढ़ रहे हैं, सो इसका जो प्रॉपर्टीज है बेस करता है टोटली ऑन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। So that's why it is very important to know what are chemical changes and what are physical changes. Let us discuss that. So what is physical change? Those changes in which only physical properties of the substances change but no new substances are formed are called physical changes. मतलब कोई सब्सटेंस का ये इस तरह का चेंज है जिसमें उसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, शेप, साइज, ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, लेकिन उसका कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। हम अगर आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है, फिर वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा।
तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमको ग्लास ही मिलेगा। प्रिपरेशन ऑफ ए सोल्यूशन, हम अगर शुगर को डिसॉल्व कर देंगे वाटर में तो शुगर सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन हम अगर इसको फिर से इवापोरेट कर देंगे तो हमको फिर से शुगर मिल जाएगा। Now what is chemical change? Chemical changes are those changes in which new substances are formed and chemical properties of a substance gets changed in a chemical change. तो chemical change में क्या होता है, आपका एक नया सब्सटेंस बनता है और जो पहले जो सब्सटेंस था उसका जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंजेस के बाद चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पेपर का लेती हूँ। देखिए हम पेपर का फिजिकल चेंज बताएंगे और केमिकल चेंज बताएंगे। पेपर को हमने टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ दिया तो उसमें क्या रहा, पेपर ही रहा, तो प्रॉपर्टी तो वो पेपर का ही दिखाएगा, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। तो वो हो गया किस तरह का चेंज, वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज, पेपर का ही देखेंगे। पेपर को हमने जला दिया, पेपर को जलाने से क्या बनेगा, पेपर तो रहेगा नहीं, तो पेपर का खुद का प्रॉपर्टी नहीं रहा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं रहा। तो अभी आपका पेपर क्या बन गया, आपका ऐश बन गया, उसमें ऐश बन गया, तो ऐश का प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, पेपर का प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए केमिकल चेंज। तो यहाँ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कुछ दूसरा एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लेकर हम अगर उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर लिटमस में लिटमस पेपर को डीप करते हैं तो एसिडिक है या अल्कालाइन है वो पता चलता है। तो ये सारे जो केमिकल चेंजेस हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। Now what is the differences between physical and chemical changes? Let me summarize. Physical changes brings about change in physical properties such as physical state, shape, size. Physical state मतलब जैसे मैंने बताया water and ice, ये water का दो physical state है, तो वहां state change होता है, ठीक है। शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, बट केमिकल चेंज में क्या है आपका, it changes the chemical properties. Next, number 2, there is no change in chemical composition of a substance during physical change. Chemical composition में कोई चेंज नहीं होता। जैसे हमने ग्लास का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया तो ग्लास ही रहेगा, और तो उसका तो और कोई केमिकल चेंज तो उसमें हुआ नहीं, ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हुआ नहीं, तो ग्लास ही रहा। पेपर को टुकड़ा करेंगे, पेपर ही रहा। आइस को मेल्ट करेंगे तो वही H2O ही रहा। तो उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस का चेंज नहीं होता, बट केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन का, आपका कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज्ड, ओके, जिसके वजह से एक नया सब्सटेंस बन जाता है। Then in physical change, no new substance is formed. In chemical change, a new substance is always formed. Then in physical change, it is temporary and hence reversible. So जैसे मैंने बताया आपको, कागज को मैंने टुकड़ा कर दिया, मैं उसको फिर से जोड़ भी सकती हूँ। वाटर को मैंने फ्रीज कर दिया, आइस बन गया, उसको मेल्ट कर दूं तो फिर से वाटर बन सकता है। तो these are all temporary. Generally they are temporary, so they are reversible. But most of the chemical changes are permanent and irreversible. तो एक बार वो अगर आपका बन जाते हैं, मान लो अब हमने पेपर को जला दिया तो ऐश बन गया, तो ऐश को फिर से हम पेपर नहीं बना सकते, तो इट इज इरिवर्सिबल। अगर हम मान लीजिए हम कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन, आप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, लेकिन वहां पर उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप बाद में पढ़ोगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। सो दोज आर द एक्सेप्शंस, बट स्टिल द ओरिजिनल कंपाउंड you will not get by the irreversible reaction. So these are the basic differences between physical change and chemical change.
Okay. Now we'll discuss about the types of mixtures. So mixtures are of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What are homogeneous mixture? Mixtures which have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. For example, mixture of salt and water, mixture of sugar and water, air, lemonade, soda water, etc. देखो ये होमोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जैसे हमने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व करने के बाद हमको सॉल्ट और वाटर में सॉल्ट और मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह डिसॉल्व कर दिया, वी कैन नॉट सी द सॉल्ट। इसका मतलब सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया वाटर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर। सो देखो यहाँ पर सेम एग्जांपल आई हैव टेकन, हम जब सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं वाटर में तो सॉल्ट कौन सा है हमको और पता नहीं चलता, सॉल्ट का बाउंड्री कौन सा है, वाटर का बाउंड्री कौन सा है, ये पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? When a ray of light is passed through the mixture of salt and water, the path of light is not seen. उसका पाथ दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अक्सर पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन लाइट रे कैन पास थ्रू, तो उसमें आपको दिया जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क दिया जाएगा, सो अदर सोल्यूशन में आल्सो भी गिवन। तो उसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करने के लिए योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। तो सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में आपका लाइट रे पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट, here you see the homogeneous mixture and a heterogeneous mixture. Here you can see the example of solution, that is salt water I have shown. So देखो salt पूरा डिजोल्व हो रहा है, तो इसमें salt है, हम देख के नहीं बता सकते कि इसमें salt है। तो salt is totally distributed, thoroughly distributed in the water. So this type of mixture is called homogeneous mixture. But आप right side में देखो, तो here you can see the in the glass I have taken water, ठीक है, वाटर लिया, उसमें ऑयल ऐड किया, तभी अभी क्या है, ऑयल और वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता, ये दोनों का डेंसिटी अलग है, ऑयल का डेंसिटी कम होता है, इसीलिए ऑयल ऊपर वाले हिस्से में जम गया और वाटर नीचे जम गया, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि देखो मैंने यहां लिखा है यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड वन कंटिन्यूअल फेज। इसमें आपको कोई दो फेज दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको लगता है कि ये एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका एक ही फेज होता है, होमोजेनस मिक्सचर में एक ही कंटिन्यूअस फेज होता है, लेकिन इसमें टू और मोर फेज। इस तरह में अगर और कोई ऑयल ले लूं जिसका डेंसिटी उससे और कम हो, तो उसके हिसाब से वो लेयर लेयर बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो फेज, यहां मैं दिखा रही हूं दो फेज है, इसका दो फेज है, आपको लग रहा है कि दो चीज है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। Now, what are the general properties of homogeneous mixture? All solutions are the examples of homogeneous mixture. Very, very important. The particles of a homogeneous mixture are less than 1 nanometer. नैनोमीटर कितना छोटा साइज होता है, उस 1 नैनोमीटर से भी इसका पार्टिकल साइज छोटा होता है, इसीलिए हम उसका जो पार्टिकल का बाउंड्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। A homogeneous mixture does not show Tyndall effect. Tyndall effect क्या है? मैंने आपको बताया कि light cannot pass through this. So when the light can pass through this, you can see the movement of the particles in the light ray. That is called Tyndall effect. I'll show you the diagram. Okay. So but the mixture, homogeneous mixture does not show this Tyndall effect. The boundaries of particles cannot be differentiated. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि इसका हम बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया, तो वाटर का बाउंड्री कौन सा है और सॉल्ट का बाउंड्री कौन सा है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन और डिकांटेशन। तो ये देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन फिजिकल मेथड है, डिकांटेशन भी फिजिकल मेथड है,
सेंट्रीफ्यूगेशन आपको मैं दिखा, बाद में हम पढ़ेंगे ये प्रोसेस क्या होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू रिमेंबर दैट दीज आर द फिजिकल मेथड। तो हम अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, लेकिन आपका होमोजेनस मिक्सचर कभी भी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिकांटेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता, बट देयर आर अदर फिजिकल मेथड्स बाय व्हिच दे कैन बी सेपरेटेड। Here one most important example, that is alloys are the examples of solution. What are alloys? I will discuss. Alloys are mixtures. What are alloys? Alloys are mixture of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. देखो, alloy एक mixture है, लेकिन ये सेंटेंस हमने जो अभी पढ़ा उसमें ये बताता है कि एलोय एक मिक्सचर है, लेकिन हम पहले पढ़े हैं कि मिक्सचर का जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एलोय एक ऐसा मिक्सचर है जो कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों मिलाकर बनता है, लेकिन हम एक बार मिक्सचर बनने के बाद हम उसका कंपोनेंट्स को फिजिकल किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? बिकॉज मिक्सचर बनाने के बाद भी ये जो मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, जैसे यहां पर हम एग्जांपल लेंगे ब्रास। ब्रास किससे बना हुआ है? 30% जिंक एंड 70% कॉपर से। तो ब्रास विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ जिंक एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर। तो जिंक अपना प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, प्रॉपर्टी को शो करता है, कॉपर अपना प्रॉपर्टी को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रास। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्सचर। ओके, नाउ व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर? Mixtures which do not have uniform composition throughout are called heterogeneous mixture. मतलब इसमें आपका दो कंपोजिशन अच्छी तरह मिलते नहीं है, मिक्स नहीं होते, जिससे कि उनका बाउंड्री को हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मिट्टी में हमने सैंड को मिला दिया तो सैंड का साइज तो बड़ा होता है, सॉइल का पार्टिकल का साइज छोटा होता है। उसी तरह हमने लिया सल्फर एंड आयरन, आयरन को सिर्फ मिक्स कर दिया, हमने उसको फिजिकली मिक्स कर दिया, तो उसमें हमको पता चल जाता है कि सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग्स पता चल जाता है, उसका बाउंड्री हमको पता चल जाता है। देन मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया था, ऑयल डेंसिटी वाटर से मिक्स नहीं होता, अच्छी तरह घुल मिल नहीं जाता, इसीलिए हम ऑयल कौन सा है, वाटर कौन सा है, हम उसको बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं। The boundaries of constituent particles of a homogeneous mixture can be identified easily, as I said, in case of water and oil. Okay, and that's why the heterogeneous mixtures have more than one phase. जितना constituent होंगे उतने phases होंगे। Now, general properties of heterogeneous mixture. Most of the mixtures are heterogeneous except solutions and alloys. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि alloys are homogeneous mixtures. Okay? Solution और alloys को छोड़ के बाकी सारे mixtures heterogeneous mixtures होते हैं. This is very very important. The constituent particles are not present uniformly in a heterogeneous mixture. The component of a heterogeneous mixture can be identified easily. Generally, two or more phases are present in a heterogeneous mixture. I have already shown you in the diagram. Oil and water. Particles of a heterogeneous mixture are sized between 1 nanometer and 1 micrometer or more. तो मिक्सचर में, heterogeneous mixture में जो constituent particles होते हैं उसका size as compared to homogeneous mixture, it is very very small. It is larger, sorry, I'm sorry, very sorry, it is larger than that of the homogeneous mixture. ये 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। Heterogeneous mixture show Tyndall effect. This is very very important.
Tyndall effect, I have told you that the ability of a solution to allow the light to pass through it. So the homogeneous mixtures do not allow the light to pass through it. Light ray cannot be seen through the homogeneous mixture, but a light ray can be passed through a heterogeneous mixture and we can observe that. So here you see how the constituent particles are distributed. So here you can see the homogeneous mixture. Here how the two particles, here two constituent particles are there. One is green and one is purple color, and they are uniformly distributed. Okay, but here you see heterogeneous mixture, they are not uniformly distributed. This forms one phase and this forms another phase. So here two phases are there, but here you cannot say that it is having more than one phase. It is a single phase only. Now what is Tyndall effect? It is, if a light is passed through a medium and its path can be seen, then the substance is said to show Tyndall effect. तो देखो यहाँ पर दो बोतल में हमने सोल्यूशन रखा है, इसके थ्रू लाइट पास हो रहा है और उसको हम देख सकते हैं. ओके, so the substance present in it are called said to be showing the Tyndall effect. For example, when a beam of sunlight enters a dark room, आप घर में भी करके देख सकते हो, रूम को अंधेरा कर दो और खिड़की को तो किसी जगह पर थोड़ा सा खोल के देखो, तो उसके थ्रू एक आपका लाइट रे आएगा. ओके, एंड ये लाइट रे क्यों आता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. ओके, वहां पर आपका जो एक दूसरे से धक्का खाने वाला पार्टिकल्स होते हैं और उसी के थ्रू आपका लाइट स्कैटर होता है और हम उसको देख पाते हैं. ठीक है. सो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? पार्टिकल्स का तो कोई बाउंड्री नहीं होता, तो वहां पर आपका कोलाइडल पार्टिकल ही नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वहां पर हम पार्टिकल का मूवमेंट को देख नहीं सकते. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी द रे ऑफ लाइट, बट इट कैन बी सीन इन द हेटेरोजेनस मिक्सचर. ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिया है. यहाँ देखो दो चीजें हैं यहाँ पर. एक के थ्रू लाइट हम देख पा रहे हैं, दूसरे में भी सोल्यूशन है लेकिन उसके थ्रू हम लाइट को देख नहीं पा रहे. सो दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन है, दिस शोज योर Tyndall effect, but this does not show Tyndall effect. Examples of mixture, हम यहाँ पर कुछ examples discuss करेंगे. Air is a homogeneous mixture, however the Earth's atmosphere as a whole is a heterogeneous mixture. See the cloud is a homogeneous. This is one of the important question. Cloud is a what type of mixture, or it is a compound? Cloud is definitely heterogeneous mixture because cloud is made up of dust and water vapor, and they are forming two phases and their boundaries are well defined. Okay, and that's why it is an example of heterogeneous mixture. Now alloys are made when two or more metals are mixed together, and they usually are homogeneous mixture. I have already told you. Example: brass, bronze, steel, sterling, silver. Sometimes multiple phases exist in alloys. Okay, in these cases they are heterogeneous mixture. अगर alloy में आपका लेयर मान लो हम दो मेटल ले रहे हैं, वो दो मेटल अलग अलग लेयर बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर, क्योंकि उसमें दो फेज आ जाते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द साइज ऑफ द क्रिस्टल. मान लो हमने दो मेटल को मिलाया, तो एक मेटल का क्रिस्टल का जो साइज है बड़ा है, एक मेटल का क्रिस्टल का साइज छोटा है, तो उसमें हम उसको जब तोड़ेंगे तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा किस मेटल का क्रिस्टल है. तो तब भी ये हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसका कौन सा है. Mixing together two solids without melting them together typically results in a heterogeneous mixture. जैसे हमने alloy बताया, alloy को हम कैसे बनाते हैं मेल्ट करके. मेल्ट करने से वो टोटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, इसीलिए वो होमोजेनस मिक्सचर होता है. अगर हम मेल्ट नहीं करके अगर मिलाएंगे दो चीजों को,
टू सॉलिड को, अगर हम दो सॉलिड को मिक्स करेंगे, जैसे सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स को हमने मिक्स किया, तो वो बन जाता है आपका हेट्रोजिनस मिक्सचर। जैसे शुगर एंड सॉल्ट को हमने मिलाया, ग्रेवल के साथ सैंड को मिलाया, ठीक है, तो ये सारे आपका हेट्रोजिनस मिक्सचर्स है। Mixtures in two or more phases are heterogeneous mixtures. I have already told you. जैसे ice cube in a drink. ड्रिंक में हमने आइस क्यूब डाला, तो आइस क्यूब तो पूरा मिक्स नहीं हुआ ना, आइस क्यूब ऊपर फ्लोट करता रहेगा, तो हमको पता चल जाएगा ये आइस है। हाँ, अगर हम ड्रिंक में वाटर मिलाते हैं तब वो होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह सैंड एंड वाटर एंड सॉल्ट एंड ऑयल, सो ये सारे आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है। लिक्विड दैट इज इमिसिबल, जो कि अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं होता, दो लिक्विड मिक्स नहीं होते, फॉर्म हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे ऑयल एंड वाटर, ये दोनों मिसिबल नहीं है, तो ऑयल एक फेज बनाएगा, वाटर एक फेज बनाएगा, सो दे आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। Now chemical solutions are usually homogeneous mixture because they are chemically prepared. The exception would be solution that contains another phase of matter. अगर एक ही फेज होता है किसी केमिकल सोल्यूशन में तो वो होमोजेनस मिक्सचर होगा, अगर उसमें एक से ज्यादा फेज हो जाता है तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक ए होमोजेनस सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, बट इफ अगर हम वाटर में शुगर को अच्छी तरह डिजोल्व कर दिया तो वो बना आपका होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन हम शुगर को डाल दिए, उसको मिक्स नहीं किए, तो हम क्रिस्टल को देख पा रहे हैं, क्रिस्टल अच्छी तरह वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तब ये बनता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। मेनी कॉमन केमिकल्स आर होमोजेनस मिक्सचर्स, फॉर एग्जाम्पल वोडका, विनेगर एंड डिश वॉश लिक्विड, ये सारे होमोजेनस मिक्सचर है। Many familiar items are heterogeneous mixture. Examples are orange juice with pulp and chicken noodle soup. ये सब में आप देखो आपका दो फेज होता है। जैसे ऑरेंज जूस में पल्प को हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये एक अलग फेज है, उसको अलग भी कर सकते हैं हम, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाता है। Some mixtures that appear homogeneous at first glance are heterogeneous upon closer inspection. कभी कभी क्या होता है, कुछ हमको देखने से लगता है कि होमोजेनस, लेकिन हम अगर उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपका दैट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ब्लड को आप देखते ही क्या बोलोगे कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, रेड कलर दिख रहा है, हमको उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बाउंड्री दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम उस ब्लड का थोड़ा सा अमाउंट लेकर अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको अच्छी तरह दिखाई देगा कि उसमें पेल येलो कलर का प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो ये सबका बाउंड्री डिफाइंड है, दैट मीन्स इट इज हेट्रोजीनस, ठीक है। तो रियली ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, लेकिन हमको दिखता होमोजेनस है, ठीक है। सो ब्लड इज सच टाइप ऑफ liquid. A homogeneous mixture can be a component of a heterogeneous mixture. For example, bitumen is a homogeneous mixture, is a component of asphalt. Asphalt is a heterogeneous mixture जिससे हमको मिलता है bitumen, जो कि एक homogeneous mixture होता है। So now we'll discuss the differences between homogeneous and heterogeneous mixture. So here are the differences. Homogeneous mixture, it has a uniform composition. Heterogeneous mixture, it has a non-uniform composition. Homogeneous mixture, it has only one phase. Heterogeneous mixture, there are two or more phases. Homogeneous mixture, it can't be separated out physically. Heterogeneous mixture, it can be separated out physically. Homogeneous mixture, homo means the same, hetero means different, and here the examples are there. होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया कि हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, एलॉय क्या होता है,
और कौन सा चीज़ पहले आपका होमोजेनस कभी होता है, कभी हेट्रोजेनस होता है, ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अंटिल देन थैंक यू।